Hello and welcome back to Coffee at Square Feet. My name is Karan Gandhi. अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आप मेरे को और मेरी कंपनी के बारे में तो जान ही गए होंगे, और अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, स्क्वायर फीट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रिटेल चेन स्टोर है जिसमें हम टाइल्स, सैनिटरी वेयर और ग्रेनाइट्स में डील करते हैं रायपुर, बिलासपुर और कवर्धा में। घर बनाना हर किसी के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। इट्स अ बिग ड्रीम बॉस। और इस सपने को पूरा करने के लिए आपको एक अच्छे आर्किटेक्ट, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर और एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। आप सबको आज कुछ आर्किटेक्चरल टिप्स देने के लिए टुडे वी आर इन अ कॉन्वर्सेशन विद द लीडिंग एंड अ वेरी विजनरी आर्किटेक्ट ऑफ रायपुर, मिस्टर सिद्धार्थ खंडेलवाल जी। वेलकम सिद्धार्थ सर टू कॉफी एट स्क्वायर फीट। वेलकम टू द शो। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हो सर आप? I'm good, I'm good. How was the quarantine? How was the days? It was very relaxing actually. Okay, okay sir. I hope आपने अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तो बहुत बढ़िया यही था जो अपन कर सकते थे इतने दिनों में। राइट। यस। तो सर आज हमारी ऑडियंस जानना चाहती थी कि what are the difficulties that you face while facing your client and while understanding your clients? See, understanding our clients is the biggest deal, I think, while we are doing the architectural service or we are doing the interior designing service. Okay. The core thing that I find, which is very less in clients, are that they are not concerned about their brief. They should be very clear about their brief. What do they need? Acha. How, actually, in what manner they want their project to be done. Okay. बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमें 2 bedrooms चाहिए या 3 bedrooms चाहिए. There has to be a very healthy discussion in their own house between the people who are going to live there, क्योंकि ये उनकी requirements के हिसाब से बनने वाला है. तो instead of asking an architect or an interior designer कि हमें कैसा करना चाहिए, you should be telling him कि हमें क्या चाहिए. This is the actual area where you should be describing your needs. Okay. ये मेरे ख्याल से एक बहुत important point है. और इसके अलावा is while designing the house, what I find is कि client should give the design freedom to the architect or the designer. You should not be telling him कि ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए. Just because you have seen something somewhere around, you think कि वही चीज हमारे यहाँ भी अच्छी लगेगी, and you force the designer or the consultant to do the same for you. Let the designer or the architect design something unique for you. Definitely. तो एक फ्रीडम मिलनी चाहिए. बहुत important part है. बिल्कुल, एक फ्रीडम बहुत जरूरी है. नहीं तो आप बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज्ड हो जाते हो. You just put the thing what they want and the things ended. Okay, okay. And sir, इसके अलावा what is the actual aim while designing a house? आपका क्या मकसद होता है, आपका क्या विजन होता है कि ये मैं अपने क्लाइंट को देना चाहता हूँ, या ऐसा करने से क्लाइंट खुश रहेगा? What is the actual aim? See, बनाना तो उनके लिए ही है, तो उनके हिसाब से बनना चाहिए. That's the most important aim of a designer or an architect. काफी फंक्शनल मैटर्स को भूल जाते हैं हम जब हम घर बनाते हैं. अगर if you are not hiring an architect or the designer, the core merit of hiring an architect or designer is to create a functional space for you. Okay. हर चीज अपने आप में फंक्शनल होनी चाहिए. The charging points, the plumbing points, the drainage, the ventilations, everything has to be properly planned. Okay. अगर आपने प्लानिंग नहीं कर रखी है, you are just investing your money, so you are just throwing it out.
That's a ठीक है। complete set of waste for you. हम्म। Even if you are doing a smallest of your project, hire someone who will make maximum out of it. So that is the डेफिनेटली। most important thing. आप ओके। कुछ भी चीज डिजाइन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, एम ये होना चाहिए कि हम सबसे फंक्शनल स्पेस बना सके हमारे लिए, एंड द कंफर्ट एज वेल. कंफर्ट इज द बिल्कुल। यस. सो कंफर्ट भी होना चाहिए और फंक्शनल भी होना चाहिए कि भाई खाली दिखने में अच्छा ना हो, उसका यूसेज भी होना चाहिए। दिखना इज एक्चुअली अ 20% पार्ट, इफ आई थिंक. वो डेफिनेटली। ओवरऑल कैसा वर्क करता है, दैट्स अ 20% पार्ट ऑफ इट. 80% पार्ट ऑफ इज हाउ फंक्शनल इट इज, हाउ इट इज वर्किंग, एवरीथिंग इज इन कमांड और नॉट. जो हमने प्लान किया, जो हमने फर्स्ट डे सोचा, हम वैसे ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. एंड हर चीज हमारे कंफर्ट लेवल के हिसाब से फंक्शनल होनी चाहिए. ओके। एंड व्हाइल डूइंग दिस सर, आप फंक्शनैलिटी के बारे में कुछ एक दो एग्जांपल्स दे सकते हैं? व्हाट एग्जैक्टली फॉर डू यू एग्जाम्पल, इफ मैंने बहुत जगह देखा है कि टॉयलेट्स में इटालियन मार्बल का यूज होता है. मीन? इटालियन मार्बल इज अ गुड प्रोडक्ट, बट इन टॉयलेट्स इट कैच स्टेन्स. ओके। जो मटेरियल पोरस है उसका कोई पॉइंट नहीं है टॉयलेट में यूज करने का. उसमें डेफिनेटली। पोरोसिटी है. इट हैज होल्स, टाइनी होल्स इन इटसेल्फ. वो स्टेन कैच करेगा. ओके। तो आप वहां पे टाइल यूज कीजिए. बिल्कुल। So this is a functional point. Instead of investing money, expending money, and saying कि it's a style statement, मैंने अपने टॉयलेट में इटालियन मार्बल यूज किया है, मैंने सारे टॉयलेट में इटालियन मार्बल यूज किया है. But that's not functional. डेफिनेटली। You only just have दैट्स अ गुड covered the पॉइंट। aesthetic point of it. डेफिनेटली। So एंड this is one example. Second is, if I have seen महंगे महंगे आपने सोफा खरीदे हैं और चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है आसपास, बिल्कुल। तो मतलब ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है. मेनी ऑफ डेफिनेटली। पीपल कंस्ट्रक्ट एंड गेट देयर होम डन विदाउट कंसल्टेंट, और बाद में फिर ये सारे इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं. प्रॉपर प्लम्बिंग प्लानिंग नहीं होती है. बाद में जाके पता चलता है स्लोप यहाँ नहीं वहाँ था, पाइप्स यहाँ से नहीं वहां से निकालने थे, अब तो एलिवेशन में आ रहा है ये पाइप. तो ये सारी चीजें एक कंसल्टेंट के थ्रू हम अच्छा बना सकते हैं, फंक्शनल बना सकते हैं. सारी चीजें मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, डक्ट्स हैं, डक्ट्स में मेंटेनेंस डोर्स दिए हैं नहीं दिए हैं. आपने एक डक्ट बना दी, उसको बंद कर दिया, 5 साल बाद आपको पता लग रहा है कि पाइप मेरा खराब है, मुझे पाइप बदलना है, तो हमने पूरी डक्ट तोड़वाई. ये सारे केसेस हमने देखे हुए. तो ऐसा आप बिल्कुल। ना करें. आपके छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में एक डिजाइनर को, एक कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करें. ही विल मेक बिल्कुल। मैक्सिमम आउट ऑफ इट. Definitely. And sir, how do you select the color theme of the house? Because colors play a very important role. तो आप किन कलर बातों पे फोकस करते हैं? सी selecting a color theme of a house depends on the clients Okay. solely. जैसा उन्हें चाहिए, उनका मूड कैसा है, उनको कैसा चाहिए, वो एनर्जेटिक हैं, वो काम हैं, वो कूल हैं, वो कैसा महसूस करना चाहते हैं. बहुत घर को Okay. ब्लैक एंड वाइट के जैसा घर मत बनाइए. लाइट कलर्स की वॉल, ब्राउन कलर के विनियर्स अवॉइड कीजिए. ऐड कलर्स टू योर हाउस. ऐड Okay. एक्सप्रेशनलेस घर मत बनाइए. ऐड Okay. एक्सप्रेशन टू इट. एक कैरेक्टर दीजिए अपने घर को. अच्छा. बस ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, डरने के चक्कर में हम जो कलर्स को यूज नहीं करते हैं. तो आप अच्छे कलर्स यूज कीजिए, घर को कलरफुल बनाइए. बाय कलर्स आई डोंट मीन वाइब्रेंट कलर्स. आई मीन कि जो कलर सूदिंग हो, आपके मूड के हिसाब से, जगह के हिसाब से भी होना चाहिए. ये सारी जैसे कुछ चीजें. एक दो एग्जांपल दे सकते हैं इसके बारे में? एग्जाम्पल इज लाइक कि जैसे आपका एक लिविंग एरिया है. फॉर एग्जाम्पल, लिविंग एरिया शुड बी विथ वार्म कलर्स. वार्म कलर्स आर रेड, ऑरेंज, येलोज. एनर्जेटिक कलर्स होने चाहिए. डाइनिंग एरिया कैन बी पेंटेड विथ येलो. येलो एपेटाइट बढ़ाता है आपकी. तो दीज आर ओके। द कलर साइंस ऑल्सो. बट अब ये आप सिर्फ अपनी चॉइसेस रखिए, द रेस्ट इज ऑन टू द डिजाइनर. क्योंकि इफ यू विल से कि मुझे एक कूल कलर जो है वो डाइनिंग एरिया में चाहिए, तो दैट कैन बी वेरी ऑड.
Yes. तो चूजिंग ऑफ कलर डिपेंड्स टू हिम, बट प्रेफरेंसेस आपके ऊपर हैं, आपको कैसा कलर, इफ यू आर मतलब लाइक लविंग सम कलर, तो आप अपने बेडरूम में उसके जरूर यूज कीजिए। इफ कलर गिव्स यू सम एनर्जी, आप उन कलर्स को बेडरूम्स में यूज कीजिए। पेस्टल कलर्स यूज कीजिए उन शेड्स के, टिंट्स को ओके यूज कीजिए उन शेड्स के। ओके। ऐसे हम कर सकते हैं। सो डेफिनेटली मतलब आप बहुत ही बेसिक कलर थीम या एक्सप्रेशन लेस नहीं बनाइए अपने हाँ, घर को, एकदम डेड टू मेक बनाने इट से मुझे मोर पॉइंटलेस वाइब्रेंट। लगता है कि आप यस। एक डेड थीम पकड़ लेते हैं, पूरी दीवारों को हाँ हाँ। एक बेज कलर कर दिया या वाइट कलर कर दिया, और एक ब्राउन हम्म, कलर का वीनियर लेके पूरे घर में फर्नीचर्स हो हम्म, गए आपके, तो आप एकदम कलरलेस हो जाते हो। वर्क बिल्कुल। विथ मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव कि कलर्स सिर्फ फैब्रिक से, अपहोल्स्ट्री से आते हैं। ऐसा नहीं है। ऐड कलर्स टू योर वॉल्स, यू आर गोना लव इट। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड सर, सिंस इट्स अ वर्चुअल कॉफी सेशन, सो आपके पास भी कॉफी है, लेट्स हैव सम कॉफी टुगेदर एंड हाँ, cheers to coffee at square feet as well. cheers. एंड वी वुड एट लास्ट वी वुड लाइक टू नो कि अभी तक के आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है स्क्वायर फीट के साथ, और आपके क्लाइंट्स को कैसा लगा स्क्वायर फीट सो फार? I would say कि Square Feet has set up a benchmark for ओके, like दैट्स गुड। टाइल इंडस्ट्री, क्योंकि ये पहला ही शोरूम था आई थिंक जो इतना बड़ा, इतने बड़े स्केल में इतनी वैरायटी को लेकर एक बार में हमें वन रूफ के नीचे मिला। यस। और वैरायटीज काफी अच्छी हैं। कंसल्टिंग टू द डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स, बहुत अच्छा मटेरियल हमें मिल जाता है। और क्लाइंट्स को भी यहाँ आना चाहिए, देखना इसलिए चाहिए बिकॉज आपको एक टेस्ट समझ में आता है कि क्या चीज ट्रेंड पर है, क्या चीज नहीं है। डेफिनेटली। स्क्वायर फीट इज अ नाइस प्लेस टू विजिट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस शो। बहुत अच्छा लगा सर, आपने टाइम निकाला। एंड टू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू फॉर viewing this episode. Stay tuned and keep watching Coffee at Square Feet. Thank you so much. थैंक यू।